Hello everyone. Now in our design of structure, our fourth chapter WRC beam. Now our next topic is types of problem. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that what is WRC beam, necessity of WRC beam. Then after we saw WRC beam is necessary the following situation. कौन कौन सी सिचुएशन में आरसी बीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम ड्यू टू आर्किटेक्चरल पर्पज. सेकंड, टू गेट मोर हेडवे इन द रूम्स. देन व्हेन बीम इज सब्जेक्टिव टू अ रिवर्सल of stress, in which case in case of earthquake. Then for precast beam, then after we saw some stress diagram for WRC beam. Then we saw derivation of important formula. So MR for moment of resistance of WRC beam is equal to MR of singly balanced RC beam, moment of resistance of singly balanced RC beam plus MR of auxiliary section. So mu is equal to mu limit plus mu2. Then after we saw stress in compression reinforcement, FSC Newton per mm square in doubly reinforced beam. Then after we saw difference between singly and doubly RC beam. So what is singly RC beam and what is doubly RC beam? So in a singly RC beam, in the tension zone AST is provided, and WRC beam in the tension zone AST is provided, while in compression zone ESC is provided. Area of tension zone, area of steel in tension zone and area of steel in compression zone. When we apply singly RC beam, when mu is less than mu limit, beam is designed as a singly RC beam. And WRC beam, when mu greater than mu limit, beam is designed as a WRC beam. In singly RC beam, moment of resistance is less, and vice versa. In a WRC beam, its moment of resistance is more. In a singly RC beam, ductility is less. In a WRC beam, ductility is more due to area of steel in compression zone. In a singly RC beam, it is not suitable where there are chance of reversal of stresses. In a WRC beam, suitable where there are chance of reversal of stresses. Now, first of all, what is necessity of WRC beam? When the applied moment on the beam is more than the moment of resistance of the beam. The structural design has the three options. First is to increase the depth of the beam, to use higher grade of concrete to improve moment of resistance, like high strength grade like M30, M35, M25, and to provide reinforcement in the compression zone of beam to increase moment of resistance. So why the necessity of WRC beam? तो when the applied moment on the beam, बीम पे हम मोमेंट अप्लाई करेंगे, वो इंक्रीज हो जाएगी मोर देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट से जो अप्लाइड मोमेंट बढ़ जाएगी. एट दैट टाइम देयर इज नेसेसिटी ऑफ WRC बीम. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सो इन RC बीम, इन अ WRC सेक्शन देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, इन WRC बीम देर आर टू टाइप्स ऑफ, दो प्रकार के प्रॉब्लम हो गए. तो फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ सेक्शन एंड सेकंड इज डिज़ाइन ऑफ सेक्शन. सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था सिंगली RC बीम में, एनालिसिस ऑफ सेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द सेक्शन. सो एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम एंड स्टील आर गिवन. क्या होगा एनालिसिस में? क्या करेंगे, जो गिवन बीम है WRC बीम, तो उसका क्रॉस सेक्शन एंड स्टील हम लोगों को दिया जाएगा. Then depth of neutral axis and mu are to be calculated. जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी एंड mu हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज NA? इट इज़ न्यूट्रल एक्सिस. तो हाउ इट डिफाइन
तो the axis which separate compression zone and tension zone in the cross section of beam, it is known as neutral axis. ठीक है. नाउ टू फाइंड आउट XU. अब हम XU कैसे फाइंड करेंगे? सो प्रीवियस वीडियो में हमें देखा था स्ट्रेस डायग्राम ऑफ दी डब्ली RC बीम. तो हमने देखा था टोटल कंप्रेशन कैसे आएंगे. तो इट इज़ C1 प्लस C2. कैसे आएगा? C1 प्लस C2. सो इट इक्वल टू C. टोटल कंप्रेशन इक्वल टू C1 प्लस C2. सेम एज टोटल टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल टेंशन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T1 प्लस T2. देन आफ्टर हम कंपेरिजन करेंगे टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन. So C1 plus C2 is equal to total tension is equal to total tension. So it is C is equal to T. C is equal to C1 plus C2 is equal to T1 plus T2. ठीक है. So हमने देखा था the formula of C1. How we can find C1? So C1 is equal to 0.36. For a singly balanced section, C1 is equal to 0.36 FCK B into XU, and C2 is equal to FSC for auxiliary section, force of compression in compression reinforcement. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? FSC माइनस FCC into ASC. ठीक है. क्या है FSC? क्या है? तो स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट. FCC कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील. तो हमें मिल जाएगा C1 प्लस C2. देन टोटल टेंशन. तो टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? T. तो वी हैव इक्वेशन फॉर दैट 0.87 FY/AS T1. 0.87 FY/AS T1. सो C1 प्लस C2 इक्वल टू T. नाउ अब हम क्या करें? जो कंप्रेशन है, कहाँ पे कंप्रेशन होगा? कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट. तो उस वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे. सो इक्वेशन बिकम 0.36 FCK B इंटू XU प्लस FSC. क्या करेंगे हम? जो स्टील के अंदर जो स्ट्रेस है उसको हम निगलेक्ट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे. सो FSC इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST. So XU can be calculated from equation above to equation. So XU क्या होगा? XU हम सिंप्लीफाइड करेंगे. दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करके, दोनों सेम इक्वेशन है. 0.87 FY इंटू AST, 0.87 FY इंटू AST. सो इट इज़ 0.36 FCK B XU माइनस FSC माइनस FCC is equal to 0.36 FCK into B XU plus FSC into ASC. ठीक है. देन आफ्टर हम XU को क्या करेंगे? XU को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. देन आफ्टर वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ XU. नाउ हम फाइंड करेंगे MU. MU कैसे फाइंड करेंगे? सो वी नो दैट वी ऑल्सो हैव फार्मूला फॉर C1 एंड C2. देखा था हमने. C1 क्या है? 0.36 FCK B इंटू XU. C2 इज इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC. सो C1 इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU एंड C2 इक्वल टू FSC compression in steel minus compression in concrete into area of compression steel. Then after Z1 and Z2 वो कैसे फाइंड करेंगे? सो Z1 इज इक्वल टू D माइनस 0.42 इंटू XU. Z2 इक्वल टू D माइनस D डैश. सो टेकिंग मोमेंट एट टेंशन रेनफोर्समेंट. अब हम क्या करेंगे? टेंशन जोन में मोमेंट फाइंड करेंगे. सो इट इज़ MU इज इक्वल टू C1 Z1 प्लस C2 Z2. सो MU इज इक्वल टू 0.36. C1 की वैल्यू हमारे पास है. सो इट इज़ 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस Z1
सॉरी प्लस सी टू की वैल्यू क्या है, एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील डी माइनस डी डैश। अब हम जो कंप्रेशन है, स्टील के अंदर जो कंप्रेशन है उसे हम निगलेक्ट करेंगे। सो इक्वेशन बिकम एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स यू in bracket d minus 0.42 xu plus fsc into asc d minus d dash. So mu can be calculated from equation, both above equation हम mu find कर सकते हैं. Now design of steel. So mu is given. So from SP16 पेज 10 टेबल C, तो mu लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे? So mu2 is equal to mu minus mu limit. So mu minus mu limit equal to fsc minus fcc into asc d minus d dash, और mu minus mu limit equal to fsc minus asc d minus d dash। ये हमें दिया गया है IS 456 2000 पेज 96 क्लोज G 1.2। Now from SP16 page number 10 table E, for a balanced single beam to find PT limit, to calculate from first of all AST from PT limit. So AS2 equal to FSC minus FCC into ASC अपन 0.87 FY, और दूसरा इक्वेशन है AS2 is equal to FSC minus ASC अपन 0.87 FY. It is also given in IS 456 2000 page 96 close G 1.2. So for calculate AS2 from this equation, total area of steel is find out by AST1 plus AST2. Now हम एनालिसिस करेंगे WRC beam. तो फर्स्ट एग्जांपल इज a doubly reinforced beam of 300 mm by 600 mm overall is reinforced with 420 mm डाया। ठीक है, 20 mm डायामीटर का हमें 4 बार दिया गया है। अब बार हैज़ अ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन जोन में कितना दिया गया है, 20 mm का 6 नंबर ऑफ स्टील। R is a tensile reinforcement. Effective cover of the both side is 50 mm. टॉप एम बॉटम में हमें कवर कितना देना है, 50 mm। ठीक है, देन M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील बार इज यूज्ड। सो कंप्यूट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है, हमें क्या दिया गया है, डबली रेनफोर्स बीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करो लाइक दिस। क्या उस डायमेंशन क्या है, 300 mm बाई 600, 300 mm बाई 600 mm। ओवरऑल इज रेनफोर्समेंट 4 नंबर ऑफ स्टील mm डाया, बार एज अ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में कितना दिया गया है, 4 नंबर ऑफ बार, 1 2 3 एंड 4 बार हमें दिया गया है। देन आफ्टर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट एंड 620 mm डाई इन टेंशन में हमें कितना दिया गया, 6 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ बार आर इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट। इफेक्टिव कवर कितना दिया गया है, 50 टॉप एंड बॉटम में, टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन में कवर क्या है, 50 mm। ऑल्सो यहाँ पे 50 mm कवर दिया गया है बोथ साइड। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20 मतलब FCK इज इक्वल टू 25 एंड FY इज इक्वल टू Fe415, सो FY इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन आफ्टर हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल कंप्यूट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम MU फाइंड करेंगे। सो वी हैव MU इज इक्वल टू C1 Z1 प्लस C2 Z2। तो हमें C1 फाइंड करना पड़ेगा, C2 Z1 एंड Z2। सो नाउ व्हाट इज C1, तो वी हैव इक्वेशन 0.36 FCK B इंटू XU, इट इज़ इक्वेशन फॉर C1। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें b इंटू एक्स यू फाइंड करना पड़ेगा। देन आफ्टर z1, तो z1 कैसे फाइंड करेंगे, d माइनस 0.42 एक्स यू। C2 कैसे फाइंड करेंगे, FSC माइनस FCC एरिया ऑफ कंप्रेशन इन स्टील इन ब्रैकेट d माइनस d डैश। तो हमें FSC फाइंड करना पड़ेगा, स्ट्रेस इन स्टील कंप्रेशन जोन, देन स्ट्रेस इन कंक्रीट, देन एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो ये सब हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर वी कैन फाइंड MU। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा है हमारे पास FCK इज 25 बिकॉज M25 ग्रेड, FE415 बिकॉज FCK 25 बिकॉज M20 ग्रेड, FE415, सो FY इज इक्वल टू 415। नाउ EST, अब एरिया ऑफ टेंशन जोन कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या नंबर दिया है, 6 नंबर, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर क्या है 20 mm, π/4 इंटू 20 स्क्वायर। कितना नंबर ऑफ स्टील हमें दिया गया है, 6। सो सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा टेंशन जोन में, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1885 mm स्क्वायर। सेम वे एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, 4 नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर, सो π/4 इंटू 20 स्क्वायर। कितना नंबर ऑफ हमें स्टील दिया गया है, 4। तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1256 mm स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया। देन आफ्टर हम क्या फाइंड करेंगे, FSC एंड FCC। सो इट इज़ गिवन इन SP 16 पेज नंबर 13। सो FCC इज इक्वल टू 0.446 FCK is equal to FCK we have 25, so 0.446 multiplied by 25, so it is 11.15 Newton per mm square. Now D dash by D ratio, कवर हमें कितना दिया गया है, 50, टॉप एंड बॉटम बोथ में कवर क्या है 50, डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ क्या है, D क्या है, स्मॉल d क्या है, तो 550। So simplified it, so we get the nearest value of 0.10. So FSC is equal to 353 Newton per mm. ये कैसे मिला, SP 16 पेज 13 टेबल F. It is by D dash by D ratio. D by D ratio से हमें FSC मिल जाएगा। Now अब हम क्या फाइंड करेंगे, XU। तो XU कैसे फाइंड करेंगे, we know that C इक्वल टू T, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T, ठीक है। हमने देखा था यहाँ पे टोटल कंप्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन, सो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0.36 FCK B इंटू XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। वही वैल्यू हमें वही फॉर्मूला पुट की है, ठीक है। सो 0.36 FCK वी हैव 25, B 300 यहाँ पे दी गई है। देन XU फाइंड करना है, देन FSC हमें फाइंड किया 11.15, FSC 353 माइनस FCC 11.15 स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू 1256 जो हमें फाइंड किया है। देन 0.87 FY क्या है 415 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील 1885। सिंप्लीफाइड इट, so we get the XU is equal to 93.04 mm. Now we have XU max is equal to 0.48, ये कहाँ से आया, IS 456 2000 पेज 70। So XU max is equal to 0.48 D, so it's equal to 0.48 multiplied by 550. We have value of D, it is 550, so it is 264 mm. Now XU is less than XU maximum. XU की वैल्यू क्या है हमारे पास, XU is equal to 93.04 and XU max is equal to 264. So XU is less than XU max.
एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स, ठीक है। सो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ये क्या हुआ, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बिकॉज एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्सिमम, ठीक है। सो एक्स यू इज इक्वल टू 93.04। नाउ फाइंड आउट एम यू। एम यू कैसे फाइंड करेंगे, सो वी हैव इक्वेशन एम यू इक्वल टू C1 Z1 प्लस C2 Z2। सो एम यू इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस एफ एस सी माइनस एफ सी सी area of steel in compression zone in bracket d minus d dash. Put all the value 0.36 fck 25 b 300 xu 93.04 d 550 minus 0.42 xu 93.4 plus fsc 353 minus fcc 11.15 multiplied by area of steel in compression zone 1256 d minus d dash. So it is 550 minus 50. Simplified it. So we get the mu is equal to 343.3 10 raised to 6 Newton into meter. So it is 343.03 kilonewton into meter. So in this way we can analyze the doubly reinforced beam. So first of all formula याद रखो, ठीक है।